Hello students, myself Rajita Chaudhary and today we will study about the separation of component of heterogeneous mixture. First of all, we came to know about the heterogeneous mixture. In last videos, you have studied about homogeneous and heterogeneous mixture types. Homogeneous mixture are those type of mixture which have same composition, constant composition throughout the solution. For example, when you mix salt or sugar with water, जब आप शुगर को वाटर के साथ मिलाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे जो सोल्यूशन आपने फॉर्म किया है वो थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम कंपोजिशन फॉर्म करता है. इन केस ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर देयर आर डिफरेंट बाउंड्रीज विच आर शोन इन द मिक्सचर आफ्टर द डिसोल्यूशन. और फर्स्टली तो ये है कि सॉल्यूट डिसॉल्व होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू मिक्स सैंड विद वाटर, तो वहाँ पे सैंड और वाटर को जब आप मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ दो बाउंड्रीज आपको शो होंगी, water and sand. These are the different boundaries in the heterogeneous mixture. Now, our today topic is the separation of these components from the mixture. Suppose you have dissolved by mistake the two components and you have to separate them in their pure state. So in on the physical changes, on the physical behalf, you can separate these type of mixture by simple method, by hand picking. For example, rice के अंदर stone से चावल में कंकड़ मिल गई है. By hand picking you can remove easily the stone from the rice. Suppose tea leaves, you have to remove tea leaves from the tea, so you can use tea net. Okay. Suppose you have to remove water from sand, so you can use decantation process. Means फिल्ट्रेशन से अदर प्रोसेस होती है. आप थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट पोजीशन में रख दीजिए सोल्यूशन को. इस सोल्यूशन को आप थोड़ी देर में रेस्ट पोजीशन में रख दीजिए. आप क्या देखेंगे कि जो वाटर है उसके पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो बॉटम में चले जाएंगे. और अब आप डिकेंटेशन मतलब धीरे से उसको एंगल बना के धीरे से उस पानी को आप ऑफ कर सकते हैं किसी अदर करके. राइट नाउ nowadays there are some technique we can use to separate these type of components from the heterogeneous mixture. First of all, today we will study about the evaporation method. Okay, we separate the component of mixture by evaporation method. First of all, evaporation method आपको पता होना चाहिए. First of all, we came to know about the evaporation method. Evaporation when any liquid is heat up, the particle whose kinetic energy is too much, they can easily leave out the surface, convert into their vapor, and the process is known as vaporization. And in case of water, this process to convert liquid into vapor is known as evaporation. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इवापोरेशन और वेपोराइजेशन एक ही चीजें हैं. वेपोराइजेशन जब कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एंड इवापोरेशन स्पेशली इन केस ऑफ वाटर. वेपोराइजेशन इज आल्सो नोन एज इवापोरेशन. राइट नाउ आवर टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ टू और मोर मिक्सचर कंपोनेंट. टॉपिक इज टू सेपरेट the component of mixture by evaporation method. Okay, first of all you have to know कि in which type of component we can use evaporation method. We can use evaporation method in separation of the component of heterogeneous mixture in those type of component in which one component is volatile nature and rest component is non-volatile nature. Now the question arises, what do you mean by volatile and non-volatile nature? Non-volatile nature. Volatile nature means ऐसे liquid, ऐसे substance जो evaporate होने की power रखते हैं, सरफेस को लीव आउट होने की पावर रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं volatile. And the substance which do not have tendency to evaporate from their surface are known as non-volatile substance.
सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं शुगर, मैंने सिंपली एक एग्जाम्पल लिया है, इन एक्चुअल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन, नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया क्योंकि एग्जाम्पल हमने वो लिया जो आपकी सराउंडिंग में, अगर मैं किसी केमिकल कंपाउंड का एग्जाम्पल ले रही तो आपको लैब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे शुगर एंड वाटर, इजीली आप देखते हैं घर में, शुगर हैज नॉन वॉलेटाइल नेचर, चीनी को अगर आप शुगर को अगर आप गर्म कर रहे हैं तो वो सीधे मेल्ट हो जाती है, कभी इवोपोरेट नहीं होती, राइट। शुगर नॉन वॉलेटाइल नेचर है एंड वाटर हैज वॉलेटाइल नेचर। When we heat this type of mixture, water can evaporate easily and in the container you get only sugar, और दूसरे कंटेनर में आप जो इवापोरेट होके गया है वाटर मिल जाएगा, तो दो कंपोनेंट मिक्सचर के अलग हो जाएंगे। हालांकि एग्जाम्पल आपको ट्रू सोल्यूशन का मैंने दिया है, बस रीजन ये है कि ये आपकी सराउंडिंग को बुला, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द टॉपिक इन योर बुक an activity is given that to separate component of mixture by evaporation method. For example, when ink is dissolved in water, means हम यहाँ पे ink separation करेंगे, blue या black ink का आप separation कर रहे हैं। First of all, you came to know about the what is the difference between ink and dye. Okay, dyes और ink, क्या ये दोनों एक ही चीजें होती हैं? नहीं। डाई मीन्स सिंपल कलर जब वो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे आप होली के कलर लेके आते हैं, ओके, मीन्स डाई। डाई मीन्स कलर जब वो सॉलिड फॉर्म में है, एंड इंक इट इज अ सॉल्यूशन और इट इज अ मिक्सचर, ओके। मिक्सचर मीन्स जब उसमें डाई और प्लस में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मैंने यहाँ इसमें यूज कर लिया क्योंकि सॉल्वेंट आप स्टडी कर चुके हैं। सॉल्वेंट आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डिसॉल्व सॉल्यूट इन देयर सेल्फ, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर कोई चीज घुल जाती है, तो सॉल्वेंट हम यहाँ पे मोस्ट कॉमन है कि यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट आप यूज करते हैं वो वाटर होता है, राइट। यहाँ पर आप वाटर के अंदर अगर डाई का मिक्सचर कर रहे हैं तो इस मिक्सचर को हम बोल रहे हैं इंक, ओके। मीन्स यू हैव टू सेपरेट डाई फ्रॉम वाटर। तो इंक के कंपोनेंट का, इंक मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, आप उसको सेपरेट कैसे करेंगे, ये आज आपकी एक्टिविटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ बीकर एंड वी यूज स्टैंड, इट इज वायर गॉज, एंड दिस डायग्राम I have shown in your notes. It is an stand. In this we have to put water, and on the top of the beaker we have to use a watch glass. Watch glass. Okay. In watch glass we have to use ink. अब देखिए, firstly you have to take a stand, wire goes, beaker. In beaker you have to put water, some water. There is no necessary that you have to take water amount with measurement. आप कितना भी water इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप वॉच ग्लास यूज कर रहे हैं, वॉच ग्लास में आपने इंक का मिक्सचर डाला हुआ है, ओके। यहाँ पर आप जैसे ही इसमें फ्यूल लैम्प से आप इसको हीट अप कर रहे हैं, फ्यूल लैम्प से आपने इसको हीट करना शुरू किया, तो आप देखेंगे जैसे ही फ्यूल से वाटर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द थर्मल टेम्परेचर ऑफ स्टीम, यहाँ से इसकी भाप बन के जाएगी जिसे हम स्टीम बोल रहे हैं, और वो स्टीम क्या करेगी, इस वॉच ग्लास में जो वाटर है, इंक के कंपोनेंट डाई प्लस वाटर, वो वाटर को इवापोरेट कर देगी, क्योंकि आप यहाँ जानते हैं जो इंक है, इंक में आपके जो दो कंपोनेंट हैं, वाटर है और दूसरा है डाई। तो वाटर के अंदर वॉलेटाइल नेचर है, उड़ने की पावर है, और डाई के अंदर उड़ने की टेंडेंसी नहीं है, तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और यहाँ पर कंटेनर में आपकी डाई रह जाती है। इस तरह से हम सेपरेट कर लेते हैं इंक के कंपोनेंट्स को। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग इन आवर माइंड दैट व्हाट इज द नेसेसिटी टू हीट अप विद द हेल्प ऑफ बीकर और वाटर बल्ब। हमने डायरेक्ट हीट क्यों नहीं कर लिया, इसको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए।
डायरेक्ट हीट अगर हम इंक को करते हैं तो यहाँ पर ये ड्यू टू थर्मल डिकम्पोजिशन जो इंक है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये केमिकली रिएक्ट कर जाएगी वाटर के साथ में और अदर कंपाउंड फॉर्म कर लेती है, जिससे कि सेपरेशन नहीं होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे से स्लोली थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, स्लोली हम इसको वाटर को इवापोरेट करेंगे और इसीलिए हम डायरेक्ट हीट ना करके इसको या तो स्टीम, जैसे हमने स्टीम से किया है, वाटर बाथ के थ्रू हम इसको हीट करते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो, नाउ योर टॉपिक इज कंप्लीट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट component separation by different method. Okay.